welcome to IC's first ever podcast. Today we are presenting to you I am Rohtak, own student who is an IPL program, a visionary and is currently working in 3 businesses. Please welcome Shreyash Parashar. हेलो कैसे हो आप? बस बढ़िया चलो अरे मेरा तो चलता है. So let's start with the very basics. So can you tell me about your childhood? कैसा रहा है आपका childhood? I mean, childhood was relatively easier than the journey now. Okay, I mean everything was handed on a plate. Okay, I come from Devas. It's a city, tier 3 city, 30 kilometers south of Indore. Yeah. Okay, and till 10th I studied over there. Later on, for my higher studies in 11th and 12th, I moved on to Indore. Okay, with my family. In my family, I have my father, my mother, and my elder brother. Okay. And my childhood was a lot of mischiefs and kind of experimenting with everything I got my hands on. Okay. So, I mean, that was it about my childhood. So I believe your childhood was very interesting. So can you tell me about that one incident that made you think like we have to shift towards entrepreneurship now? Yeah, I I mean, mean, what creative thing you can think? I mean, you just told me about mischievous things and experimental stuff. Right. So you see, बचपन से ही घर में like phones आते थे, कुछ नया आता था. Okay, so like it's like we are talking about what 2014, 2011. Okay, my dad just got me a tab at that point. Okay, we are just trying to discover what a touch screen is, how that functions and everything. उसके पहले वो Micromax आते थे, Nokia आते थे. And I don't know why, but everyone would just hand over those things to me. कि जब देख लो क्या ही बच्चे क्या ही करेंगे. Okay, so I would just start navigating around it. कभी किसी दिन तो मैंने I remember I really my dad literally lost it when I did something to his SIM and locked his SIM and I forgot the password. मुझे पता भी नहीं था क्या होता है वो, बस समझ में आ रहा था numbers से बटन दबा दिए थे. तो a lot of these kind of things happened. करते रहते थे हरकतें, तो उसमें सीखते सीखते मजा आता था. Then at some point I started learning about computer around 4th, 5th. Then transitioned into animation as well at around same age. And You were transitioning to animation in 4 to 5 years. So I mean, just 4 to 5 5 class. Yeah, Okay. right. I mean, you were just like 10 to 11 years old. Yeah, it was more of like कि गर्मी छुट्टी है, अब क्या करना है, मतलब people would go to summer camp and everything. I was kind of, my parents would always take me to swimming, but I was kind of afraid of water at that point, so I didn't want to go there. कुछ और करते हैं, तो my brother kind of pushed me कि चलो आप ना सीखो, you should learn animation, computer सीख लिया था, animation भी सीखो. So going towards that. थोड़ा एक पुश खुद से कब मिला जब we had this AC installed at our home. Okay, अब मिडिल क्लास फैमिली इंडियन घरों में गर्मी के बाद AC चलता नहीं, ठीक है. तो इट्स नॉट लाइक अ हॉट समर डे, आपको एकदम से एक दिन ऐसा आ रहा है मिड ऑटम मिड विंटर कि आपको ऐसा लग रहा है यू जस्ट वांट AC, ऐसा होता नहीं, ठीक है. तो व्हेन नेक्स्ट सीजन वी रीस्टार्टेड द AC नेक्स्ट समर, it was not cooling properly. There was some kind of gas leakage issue. So my dad called this guy who was just trying to fix the whole thing. So I asked him कि भैया कैसे करोगे, मतलब उस पूरे पाइप में कहीं तो गैस का लीकेज हो रहा है, आप कैसे पता करोगे. So he said कि मैं ना एक गैस डालूंगा, I will just switch your AC off. Now I will put in a colored gas जिधर से निकलेगी मुझे पता जाएगा, सिंपल से कर सकता. मैं सोच रहा था कि यार पता नहीं क्या हुआ. I started thinking कि यार इसकी जगह कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इस इंसान को बुलाना ही ना पड़े, अपने आप एक कहीं पे अपने आप सील हो जाए, या ये कंपनी वहीं से बैठे बैठे वो काम कर दे. पता नहीं क्या सोच रहा था ना, मैं शायद 8th क्लास में रहा हूँगा. And mind you all guys, ये 10 से 11 साल का था उस वक्त. हाँ मतलब तो I mean I was just trying to figure out कि भैया क्या कैसे होगा. तो कुछ तो सोचा मैंने कि यार कुछ होना चाहिए. Then I started working on that idea and I kind of thought that a high pressure vacuum seal would be a good problem solver जो automatically कहीं remote distance से trigger हो जाए, ठीक है. ऐसे कुछ एक आइडिया सोचे मुझे, मैंने तो कंपनी का नाम भी रख लिया था कि मैं कभी किसी कुछ बनाऊंगा ना तो उसका नाम रखूंगा मेशर्स. एक कंपटीशन आया था, आई वाज स्टिल इन स्कूल, स्कूल्स फ्लोट करते रहते हैं, तो इट वाज अ पिचिंग कंपटीशन, startup pitching competition, and you just need to pitch your idea. Now my brother told me ले जा, ट्राई कर ले, क्या कुछ भी कर ले, क्या ही जा रहा है, बिकॉज अब घर में बैठे हो क्या ही करोगे. सो आई ओपनड अप माय लैपटॉप एंड मेड अ वेरी रफ पिच डेक एंड मैंने पिच करना चालू किया. एंड
कुछ हुआ नहीं, किसी को समझ नहीं आया, किसी को पसंद भी नहीं आया, मैं समझा ही नहीं पाया मेरा आइडिया, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरे को बाकियों के आइडिया सुनने को मिले। एंड आई सॉ पीपल एक्चुअली फ्रॉम कंपीटिंग स्कूल जहाँ पे दिमाग लगा रहे थे सारे, तो मुझे लगा यार एक अच्छा कुछ तो होना चाहिए। लेटर ऑन मुझे याद था बाइक राइड पे मैं मेरे भैया के साथ था, अराउंड अ वीक लेटर, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट सिमिलर काइंड ऑफ स्टार्टअप थिंग्स, एंड Zomato had just started penetrating in our city at that point. So we were thinking कि यार एक ऐसा ऐप होता जो आपको झटपट सामान ला के दे दे सारा, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर, और आपको सिर्फ ये सुविधा तो चलो एक बार को Amazon वन डे डिलीवरी से अचीव कर रहा था उस पॉइंट पे, पर अब जो ब्लिंकिट तो कर लेता है, बट उसमें ये चाहिए था कि ट्रायल का ऑप्शन हो जाए, लेकिन लाला की दुकान पे ना जाना पड़े आपको, और आपको घर बैठे बैठे ट्रायल हो जाए। सोचा था वी डेवलप दैट आइडिया, द कंपनी वी आई लेटर ऑन नेम्ड द कंपनी इज प्रोवा, ओके, एंड पिच डेक बनाया, वन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस, पिचिंग कॉम्पिटिशंस के चक्कर में एक आइडिया मिला। ऐसा लगा कि यार यू नो बच्चों के सपने होते हैं, देखो है ना, बचपन में कि यार बड़े होके लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे ना, ये फलाना गाड़ी ना वो फलाना गाड़ी, ठीक है, या सब पैसा को दे जाने का। पर जैसे रियलिटी हिट करते हैं 20 स्कूल के बाद से समझ में आता है कि यार देखो वही 17-18 लाख के पैकेज लगने हैं, ठीक है, वो भी लग गए तो बड़ी बात है ना, और उसके बाद तो ये सब नहीं आएगी। तो ये समझ में आ गया था मुझे बहुत क्लियरली कि यार जॉब से तो नहीं मिलने वाला ये, अगर अपने ड्रीम्स अचीव करने ही है, वही पता है कि ये ड्रीम है, ठीक है, गोल तो नहीं है, बट ये ड्रीम्स है, ये सब चाहिए एक पॉइंट पे, तो एंटरप्रेन्योर्स जर्नी पे जाना ही पड़ेगा, एक तरीके से धंधा खोलना पड़ेगा। तो I left it after giving my NEET exams. Okay. And things. So you were giving your NEET exams between 11th, 12th, no? हाँ, like 11th-12th में I was studying. Usually बच्चे dummy ले लेते हैं. I didn't take dummy. Okay. I went ahead on my journey and I started going to school every day. In 12th I was nominated as head boy of my school. I tried understanding commerce faculty at that particular school. बिकॉज मैं कॉमर्स का था नहीं, सो उनको पता नहीं था मेरी हरकतें कैसी हैं, सो दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ मी। ओके एंड एट एक कॉमर्स फिर उन्होंने मुझे ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑप्शन दिया। अब मैं कॉमर्स का तो था नहीं, तो दे जस्ट saw the potential, बोले तुम हेड बॉय हो ही, you become the president of this commerce fair, you start a PCB guy is and believe me, revolt तो इतना हुआ था ना उस बात पे कि अरे PCB वाला है, how are you even going for that, and my dean of this college, school's dean was like पीछे पड़ गए थे कि no you can't, but I was like नहीं मैं करूँगा, and I did it जैसे in around 6 hours we netted a profit, not revenue, a profit of 5.5 lakhs out of a few stalls, and बच्चे सारे स्कूल के ही थे, ठीक है, और वो छोटे छोटे बच्चे, वो भी ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज्यादा समय दिया था, मैं मतलब समय दिया होता था 10 लाख तक हम निकाल देते हैं, पर वो कुछ 15, 20, 40 मिनट के लिए कुछ हर एक क्लास आ रही थी और जा रही थी वो, तो it really made some good things, but that was all about how I just got the initial push कुछ करना है। So let's jump to our next section, which was your entrepreneurial journey. अच्छा, so how it started? एग्जाम दिया ही था, ओके, एंड उससे थोड़ा सा पहले अराउंड लाइक आई वुड से 12 months में भी, 1 साल ही पकड़ लो मोटा मोटा, 1 साल पहले मैंने उस टाइम तक खुद से ये सीख लिया था कि खुद से कोडिंग कैसे करनी है, एंड यूट्यूब से सीख के इधर उधर से किसी ना किसी से, और थोड़ा खुद से चला के, और वेबसाइट कैसे डेवलप करनी है, ओके, ठीक है। Oh, your website designing is a very different scenario. You didn't talk about it. ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। तो हुआ ये कि I started developing websites, ठीक है। From what age? Just tell my viewers this. Okay, so I started developing website when I was what 16 maybe 16, ठीक है। पर वो बड़ी ही पता है वो क्रैपी वेबसाइट्स, ठीक है, मतलब वो जो वो बन जाती है आसानी से विक्स पे, वो सारी वो ब्लॉग वाली वैसे वर्डप्रेस वाली, हाँ बस वही वैसी, परफेक्ट। तो सीख रहा था मैं वैसे करके, ठीक है। Just mind you guys, अभी भी मैं उस वर्डप्रेस लेवल पे हूँ। अरे ठीक है, सबकी जर्नी अलग होती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे पसंद आ रही है चीज़, तो मैं कर तो सकता हूँ, तो मैं धीरे धीरे खुद से सीखा, थोड़ा स्किल्स को ज़्यादा डेवलप कर लिया। मैंने समझा कि देखो लोगों को तो अभी चाहिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, और वेबसाइट की डिमांड शॉपिफाई इस तरफ ही है, तो मैंने उस तरफ में डेवलप करना चालू किया। अरे मैंने फर्स्ट क्लाइंट का काम तो फ्री ही किया था, ठीक है, पर जो एक रियल फर्स्ट क्लाइंट आया उसको मैंने 4000 रुपये में, धीरे धीरे मैंने क्लाइंट्स अप्रोच करना चालू किया, ठीक है, लोगों को ढूंढा, समझ में आया कि यार काम हो तो सकता है, ठीक है, इधर उधर से थोड़ा पैसा लोगों से लिया, स्क्रैप किया थोड़ा, समझा,
फाइवर और अपवर्क ये सारे प्लेटफॉर्म्स होते थे। यहाँ पे जाके लिस्ट कर लेता था। पहले तो आते नहीं थे क्लाइंट्स, फिर समझ में आया कि कैसे आएंगे। धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, ठीक है। फिर कम्स नीट करनी तो थी नहीं, ठीक है। कोचिंग हर दुनिया जहाँ की कर ली थी। तो जिस दिन नीट दे के आया उस दिन बाहर निकलता हूँ मैं पेपर से, पापा को कहता हूँ पापा सुनो मैं ना जा रहा हूँ घूमने। तो बोलते कि कहाँ जा रहे हो, है ना। मैं पहली बार उनका लड़का ऐसे अकेले जाने वाला कहीं पे, तो बोले कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा डिसाइड किया मैंने थोड़ी बहुत जगह। तो बोले पैसे, मैंने कहा थे मेरे पास, मैंने कमा लिए थे। तो उनको काफ़ी दिक्कत हुई इस चीज़ से। क्या है कि मेजरली मैंने ना ये पिचिंग कॉम्पिटिशन में से पैसा खूब उठाया था। तो बोले कब जाओगे। वो सोच रहे हैं कि अब जाएगा अगला 10-15 दिन में। कुछ बोला कल सुबह ट्रेन है ठीक है, कल सुबह ट्रेन है, मैं संभाल सब कुछ हो चुका है। तो मैंने कब किया, मैंने कहा बस एग्जाम से 1 हफ्ते पहले। तो बोला एग्जाम से 1 हफ्ते पहले अगर तू ये कर रहा था तो तू कर गया। तो मुझे एक बात बताओ, फिर तुमने ना अपने पापा से पूछा नहीं है, उनको बताया नहीं? एग्जैक्टली, मुझे तो यही था ना कि अब चलो बताते हैं। अब बोले चलो ठीक है जाओ अब जाओ। उनको भी इतना प्रेशर लेना नहीं था, ठीक है। तो मैंने सामान पैक किया, मैंने अपना सारा सामान एक रक्सैक में डाला, एक अलग से डफल बैग लिया और आगे एक मेरा लैपटॉप बैग टांगा, ठीक है। और एक प्रॉपर ट्रैवलर वाला हैप्पी लुक लेके मैं ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ते बराबर टेक्स्ट में डैड कि सुनो पापा मेरे से ना नीट नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, तो मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, ठीक है। और आने की अपेक्षा है नहीं मेरे को ये कभी करना नहीं था। तो हंसता ला हाँ पूरा ऐसे घुमा और आखिर में फिर दिल्ली आया। अब मैं क्या, मेरे पास इतने पैसे थे, मुझे पता था ये सारी चीजें हो जाएगी। और ये कितना महीना तुमने घूम लिया? लगभग 1.5-2 महीने हो गया था सब, ठीक है। एक 1.5-2 के बाद बताता तो सुनो। अब होता ये है ना कि मतलब भाई साहब मैंने तो सोचा था कि पैसे खत्म होंगे, अपनी ट्रिप खत्म होगी, अब घर वापस, तब तक घर वाले समझ जाएंगे लड़का वापस चाहिए, ठीक है। पर हुआ नहीं है पैसे खत्म हो गए और मैं इंदौर पहुंच गया था। इंदौर पहुंचा हूँ, घर वाले देवास वापस जा चुके हैं एंड आई एम लाइक पापा अभी आने का है। तूने कॉल पे बात करी? हाँ, तो उनका स्टेटमेंट आया, कौन सा घर, तुम तो छोड़ चुके थे, आप बाहर ही रहिए, ठीक है। और वो ऐसा शॉकर लगा मैंने, ये तू मुझे बहुत सार्कास्टिक टोन में बता रहा है। हाँ, ऐसी नहीं हुई थी कन्वर्सेशन। ओह शिट। उसके बाद मुझे कर दिया गया ब्लॉक और फैमिली ग्रुप से। वो मतलब पहली बार मैंने देखा पापा रिमूव यू, फैमिली पापा रिमूव लग गए, ठीक है। अब मैं सोचा क्या करूँ, जेब में साला 5,000 रुपए थे, ठीक है। तो पहले तो मैंने होटल ले लिया था एक, है ना, वो कुछ 2-2,500 रुपए का था, 2 दिन चला वो। उसके बाद मैंने कहा यार अब क्या करें, ठीक है। तो मतलब उस दिन भी ठाट भाट टूट थोड़ी रहे थे, 1,000 रुपये में 900 रुपये में मिल जाता हो, लेकिन नहीं चाहिए था ठीक ठाक होटल, ठीक है। तो समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए। तो अगले दिन हालत ऐसी हो गई यार अब तो कुछ है नहीं, तो मैं बोला भाड़ में जाए, मैं सो रहा फुटपाथ पे। तो मैंने लगाई वहाँ पे अपनी चादर और मैं सो गया, ठीक है। एक दिन हुआ, मतलब थोड़े से पैसे बचे थे, खाने लायक थे, ठीक है। दूसरे दिन भी हो गया, तो तीसरे दिन मतलब भाई पैसे नहीं हो पाएगा। एक स्टूडेंट एरिया है इंदौर में, गीता भवन, वहीं पे एक हॉस्टल वाले हैं, ठीक है। हॉस्टल के साथ चलते स्टूडेंट हॉस्टल। तो मैंने जाके एक बंदे से बात करी कि यार मेरे को एक रूम चाहिए, 8 पीजी टाइप का है। तो 8-8,500 रुपये का रेंट था, 4 लोग का शेयरिंग था, खाना वाना सब इंक्लूडेड। 4 लोग का एक रूम में? हाँ, रूम थोड़ा बड़ा था, अच्छा, पर 4 लोग एक ही में रहते थे। बोला था कि आपको इसके अंदर रहना है, ये सब है। तो मैंने बोला यार मेरे पास पैसे नहीं। तो अगले 4 घंटे में मैंने उसको कन्विंस किया कैसे मैं उसके बिजनेस को हेल्प करके स्टेंजा लिविंग जो इंदौर में चल रहा था उसको बीट करवा सकता हूँ, उसको बीट करवा दूंगा आपके धंधे को आगे बढ़ा के स्केल करके, ठीक है। गाय वाज नॉट एंटायरली कन्विंस, बट इतना कन्विंस था कि वो एक शॉट लेना चाहता था, ठीक है। इन द मिडल ऑफ दिस अभी क्या कुछ 10 दिन ही हुए थे। तो 10 दिन के अंदर तूने इतना काम कर लिया? नहीं, मतलब ये तो पूरे टाइम का था, बट 10 दिन अभी हुए थे। और ऐसा था कि जो मेरा हॉस्टल था, हॉस्टल के सामने ही एक कैफे था, और वो कैफे बस खुल ही रहा था उस टाइम। तो मैंने बात करी, मैंने बोला क्या मतलब कैफे कैसा है, तो उसने बताया। तो उनको, वो दोनों पार्टनर थे और उनको भी कोई समझ नहीं थी कैफे कैसे चलता है, बस उनको ये था वो अपनी जॉब स्प्लिट करके आए थे, मैंने कैफे चलाना आपको, ठीक है। कॉल सेंटर में काम करते थे, बोले कुछ करना है, मैंने कहा
इंदौर में तो ये चीज है यार कि कुछ नहीं हो रहा है तो कैफे खोलो भाई और वो चलेगा भी वो एग्जैक्टली वो चल भी आता है, हमारा नहीं चल पाया पर उतना ठीक है। स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब मैंने क्या उनके साथ ज्वाइन कर लिया कि यार चलो एक काम करते हैं एंड लेट मी जॉइन यू गाइस एंड लेट्स इंक्रीज द सेल। तो बाय टाइम धीरे धीरे खाना नया इंट्रोड्यूस किया, मैंने वेबसाइट बना दी उनके लिए, वी नेम्ड द कैफे ब्रू हाहा। तब मैंने सोचा कि यार इतनी पढ़ाई कर ली है, वेस्ट तो नहीं जानी चाहिए, तो मैंने पढ़ाना चालू करा। तो मुझे फिजिक्स काफ़ी पसंद था, तो मैं फिजिक्स पढ़ाता था। पहले तो मेरे रूममेट्स को ही पढ़ाया, ठीक है, आई यूज्ड टू चार्ज सम मनी। उसके बाद फिर हॉस्टल में बाकी लोग जो थे वो पढ़ लेते थे, एंड उसके बाद फिर ये हो गया कि सामने एक जगह खाली थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वो खाली हो गया था। तो जिस जिनका था वो, उनको ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था खाली जगह से। तो मैंने बोला ये रूम मुझे दे दो, ठीक है। तो बोले ठीक है क्या करना है, मैं पढ़ाऊंगा कुछ बच्चों को जो मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड वोर्ड लगा के अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। बोर्ड आपके लगा ही वैसा सेटअप है, मेरे को बस पढ़ाना है। तो बोले चलो ठीक है ले लो, आई वोंट चार्ज यू एनीथिंग। मैं कहा बढ़िया। ये हो गए थे कुछ 2-2.5 महीने। कैफे वाज नॉट गोइंग गुड। अब कैफे में क्या हो रहा था कि हम सोच रहे थे यार कि पैसे तो आ रहे हैं, हम लगा भी रहे हैं, पर पूरे थोड़ी लगा रहे हैं हर दिन के, तो बच क्यों नहीं रही, गल्ला क्यों नहीं बच रहा। समझ आया गल्ले की चोरी हो रही थी। एट वन पॉइंट समझ आया कि कैफे का अच्छे खासे नुकसान होता है, कैफे कर दिया बंद। गले की चोरी हुई थी, कौन कर रहा था? पार्टनर। बाद में समझ में आया हमको ये बात, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया उस बारे में, बट वो कैफे वहीं बंद करना पड़ा, ठीक है, आगे कुछ ज़्यादा चला नहीं। पर मैंने उससे F&B बिजनेस के बारे में बात करी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो मैं दिन भर काफ़ी 9 बजे से जाता था। तो मैं क्या होता था कि मैं समझा कि यार जीने खाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो एक काम करते हैं, वेबसाइट बनाना आती है, लेट्स स्टार्ट दैट अगेन। तो मैं सड़क पे उतरा और मैं दुकान पे दुकान सबको अप्रोच करने लगा कि आपको क्या वेबसाइट चाहिए। तो समझने लगा आपको क्यों वेबसाइट चाहिए, मैं बताता हूँ, और आपको वेबसाइट मिलने से क्या होगा। तो मैं वहाँ सबके पास गया, मैंने बात करी, इतने रिजेक्शन सुने, कई डॉक्टर्स के पास भी गया, और कई सारे रिजेक्शन के बीच में कुछ कुछ हाँ भी हुए। तो मेरे पहले सबसे बड़े क्लाइंट थे डॉक्टर सुमित हार्डिया, इज अ डेंटिस्ट, ठीक है। मैंने उनसे बात करी, मैंने उनकी वेबसाइट पहले से थी, ठीक है। तो मैंने उन्हें बताया कि यार जो वेबसाइट इससे बनवाई है ना, ये तो वेबसाइट ही नहीं है, ठीक है, डोमेन है खरीद के रखा, पार्क डोमेन है, कुछ भी नहीं है इस पर, तो लेट मी डू समथिंग फॉर यू, मैं बनाता हूँ आपके लिए वेबसाइट, आप इतना इतना खर्चा आएगा। एंड फिर उन्होंने मुझे एक सॉफ्टवेयर भी बनवा लिया साथ में, बोले सॉफ्टवेयर भी चाहिए मुझे। तो टोटल कुछ मैंने उनको 64,000 67,000 का कुछ बिल किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने रिकरिंग सर्विसेज कुछ 20,000 समथिंग की थी पर ईयर। एंड आई वाज सो हैप्पी बाय दैट डे कि पहला बड़ा क्लाइंट है मेरे लाइफ में, ठीक है, जिसने कुछ सही से काम किया। एंड इसके बाद तो वर्ड ऑफ माउथ धीरे धीरे जितना चलने लगा, इट वाज जस्ट स्नोबॉलिंग। फिर एक पॉइंट पे आई मेट रॉब, ठीक है, रॉब इज अ क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है। मैं उनके शॉप पे गया, मैंने बोला वेबसाइट चाहिए, तो बोले इफ यू आर रियली, ही टॉक टू मी द गाय, ओके, एंड उन्होंने रमेश सर थे मतलब एक्चुअली वहाँ पे, उन्होंने बोला कि यार इफ यू रियली वांट टू डू दिस, दिस इज द एड्रेस, कम टू दिस एड्रेस टुमारो एट 10 AM, लेट्स टॉक, अदर पार्टनर्स विल आल्सो। कहाँ मिले थे सबसे पहले? इट वाज अ शॉप, उनका जो रिटेल आउटलेट था वहाँ पे। तो मैं बोला ठीक है, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो अगले दिन ऑटो पकड़ के अपन पहुँच गए वहाँ पे 10 बजे। एंड देन आई मेट देम, तो बोले हाँ मुझे बताया था आप आने वाले हो, ठीक है, आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल। तो बोले यू कैन डू दैट फॉर अस, यू कैन टेक अस ऑनलाइन। मैंने कहा ऑफ कोर्स आई कैन टेक यू ऑनलाइन, आई कैन बिल्ड यू एंटायर ई-कॉमर्स चेन। तो उन्होंने बोला सब कुछ करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लोथ। अब क्लोथिंग लाइन समझो पहले क्या होता है कपड़ा। उन्होंने लिटरल भाषा उनकी स्टेटमेंट देता है कि कपड़ा समझो। आप हमको तभी बता पाओगे, आप हमारी स्टोरी तभी आगे बता पाओगे जब आप समझोगे कि हम करते क्या है। धीरे धीरे क्लाइंटेल बढ़ गया। At this point, clientele is even like last time I tried counting, it was about 220 clients as of now, netting over 7 CR. Okay, so the thing is कि when I was in 6th class, okay, my brother introduced me to this concept of IPM. IPM, okay, हाँ, ठीक है। एंड ही टोल्ड मी कि इंडिया में ना सिर्फ उस पॉइंट पे 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, आई एम इंदौर एंड आई एम रोहतक, विच ऑफर दिस, ओके। मुझे याद है बस अपने घर की सीढ़ी पे बैठा था जब वो मुझे सब बता रहे थे। वो आए थे कहीं से, शायद कोचिंग से या मेरे स्कूल से कहीं से आए थे। ही वाज जस्ट टेलिंग मी दिस एंड ही टोल्ड दिस कि यार पता है तुम्हें ना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा इसके लिए, इट्स एन एग्जाम IPM एट, ठीक है। तुम उस एग्जाम के लिए ज़्यादा पढ़ोगे नहीं, तुम जैसा बच्चा अपने आप दे देगा, डोंट स्टडी एनीथिंग अलग से। मैंने बोला जब तू IPM एट क्यों नहीं देता, गिव दैट, ओके, गेट इनटू एन IIM मे बी, है ना, तो कॉलेज देख ले। तो मैं मेरा ना 11th 12th में वो था
साइड सब्जेक्ट था, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट था, लीगल स्टडीज। लीगल स्टडीज एंड आई लव्ड दैट सब्जेक्ट, मतलब सुपर सब्जेक्ट, मुझे तो बड़ा पसंद आता था। तो उसमें बेसिक क्या होता था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह? नहीं, एंटायर जो भी आप लॉ के प्रोग्राम में पढ़ोगे ना, मैं 5 साल में 3 साल में जितने वो सब कुछ रैप्ड इनटू अ ईयर 2 इयर्स स्टडी। जैसा बेसिक फंडामेंटल। हाँ, सब कुछ बेसिक में पढ़ा दिया जाता था शुरुआत में, बीट वाइट कॉलर क्राइम सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। तो इट वाज ग्रेट। सो वंस वी वर ऑन दैट जर्नी, तो मुझे ये लगा कि यार मेरे को लॉयर बनना है, हाँ। ठीक है। इफ नॉट एनीथिंग, मुझे लॉ की फील्ड में कुछ करना है, ठीक है। अब मैं इतना गंवार इंसान, मैंने उस समय सोचा ही नहीं कि लॉ में क्लैट जो है, मुझे किसी ने बोल दिया था बस कि क्लैट देने के लिए मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है, आपका 12th में मैथ्स होना चाहिए। और मैंने कहा मेरे पे तो थी नहीं, है ना। तो मुझे समझ में आया कि एक ही ऑप्शन बचता है, आईपीएम, ठीक है, जहाँ पे बिना मैथ्स के आईपीएम के साथ आप घुस सकते हो, ठीक है, आपको चेक मार्क तो करना है। तो मैंने कर दिया था, तो मैं बोला आईपीएल लेंगे अपन। तो मैंने सो आई टेल यू दिस माय डैड्स रिएक्शन। तो फैमिली ग्रुप है, पापा निर्मल से आ गया ऑफर लेटर, ठीक है, एक थम्स अप। पापा आई एम रोहतक से आ गया, डबल। दैट्स इट। क्या इन पर्सन तो हुआ होगा ना? फिर वो आया शाम को ऑफिस से घर आए, मैंने लाइक चलो बढ़िया है ना, एवरीथिंग। मेरे को दिख नहीं रहा था कि मेरे को चाहिए नहीं था कि लॉ लॉ नहीं, वो उनको आज भी लगता है लॉ क्या पढ़ाई है। लेकिन यार मेरे को ट्रांजिशन समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट यू डिड क्या कहते हैं नॉर्मल 10, ठीक है, उसके बाद 11 12 यू डिड नीट, ठीक है, बट यू हैड ऑलवेज क्या कहते हैं माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर। हाँ। यू हैड लाइक कॉमर्स चाहिए, बट गया तो लॉ। हाँ, ये क्या हो रहा है? और still you are working now as a entrepreneur. So आई मीन अब मतलब अगर तू इसका कुछ अमेरिकेशन बना सकता है ना, इन पापी पेट का सवाल है। पापी पेट, तू बात मत कर फिर पापी पेट की भाई। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते ना हुआ, क्योंकि रॉब से कपड़ा समझा, उसके बाद 2-3 और ब्रांड्स में मैंने कपड़ों की समझ ली। उसके बाद ना आई नो क्लोथिंग इंडस्ट्री रियल, लाइक बोलते ना एट द बैक ऑफ माय हैंड। तो मुझे सबसे पता है, आई नो कॉन्ट्रैक्टर्स टू सेलर्स टू वेंडर्स, हर चीज, रॉ कपड़े बनने से पहले का फैब्रिक, सब चीज कहाँ कैसे प्रोक्योर होगी इस पॉइंट पे, कहाँ कैसे कौन प्रिंटिंग करेगा, सब चीज की नॉलेज है। सो एट दिस पॉइंट आई एम स्टार्टिंग अनदर वेंचर ऑफ माइन, जो अगेन पार्टनरशिप में है, एंड आई एम डूइंग अगेन द सेम थिंग, ठीक है, बट दिस टाइम समथिंग न्यू। तो क्लोथिंग इंडस्ट्री वहाँ मैंने चालू करी। नाउ आई एम स्टार्टिंग द प्रोवा आई टोल्ड यू, नाउ आई एम फाइंडिंग इन्वेस्टर्स फॉर दैट, ओके, आई एम रीस्टार्टिंग द सेम स्केल्ड बिजनेस, ठीक है, एंड आई एम होपिंग आई कैन डू समथिंग विद दैट। Similarly, my this digital marketing and everything, पूरा e-form है, we call it Drifting Technologies. Okay. Finally, after having so many clients and literally 1000 requests from all of these clients कि भैया अब तो तुम Instagram पे आओ, because वो मतलब प्रमोशन कैसे होता है, वर्ड ऑफ माउथ कैसे, कि नंबर दे दिया मेरा, बात कर लो भाई से, ठीक है, बट काम कैसे दिखाए कोई। तो मैंने जब बहुत किसी ने मुझे फोर्स किया, तो मैंने shreyashparashar.com पे होस्ट कर दी एक वेबसाइट, मैं 4-5 लोगों का काम दिखा दिया, मैंने कहा इतने काफी है, देख लो यार, ठीक है। मेरा वर्ड ऑफ माउथ चल रहा था, मुझे चाहिए नहीं थे ज्यादा क्लाइंट्स, बट उसके लिए वेबसाइट ही बनाई। पर अब जब लोगों ने बोल दिया इतना ज्यादा, तब मैंने सोचा कि उन्होंने बोला कि यार यू मेक अ इंस्टाग्राम पेज ना। मैंने देखा यार जब लोग फालतू कंटेंट जाके वायरल हो जाते हैं, पर अपने को जब पता ही है कि डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करती है, मतलब पूरा इंडस्ट्री उसके अराउंड पिवट है, ठीक है। I work for really big brands. I can't really name them, but believe me, the brands are real big, और उनकी पूरा मार्केटिंग कैंपेन 0 to 100 लॉन्च करके चलाया आगे तक। Okay. एंड जब ये सब कर चुका था एक पॉइंट, मुझे लगा कि यार अपने खुद का भी करना चाहिए। सो वी जस्ट स्टार्टेड अप द पेज, ओके, नथिंग इज सेट अप येट, बट वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग इट अप। साथ में अराउंड अ फ्यू अदर स्किल्स आई हैव, उसके अराउंड भी कुछ एक पेजेस चालू कर रहे हैं, Okay. एंड आई हैव दिस टीम ऑफ 15 फ्रीलांसर्स, ठीक है। As of now. हाँ, पहले So let's just find up our podcast. Right. So that what just one thing you want our viewers to just know कि मतलब क्या करना है, अगर उनके अंदर है कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का स्पार्क, so what that one thing जो आप उनको सजेस्ट करोगे और एक एडवाइस दोगे कि मतलब ये कर ले कुछ हो सकता है। you know, as I was just saying, skills पे काम करना ना is the best thing you can do. Like पता है वो हर कोई कहेगा तुमको, हर किसी को कि यार you know अपग्रेड कर लो अपनी स्किल सीख लो, सब कर लो, ठीक है ना। हमें ये लगता है कि वो एक पुरानी कहावत नहीं ऐसी कि मतलब that goes, I don't know what it says, but कि
यार लर्निंग नेवर स्टॉप, पढ़ाई करते रहो, उसका रियल इंटरप्रिटेशन पता है क्या है कि यार आप पढ़ तो रहे हो बट इट शुड गेट इट शुड गेट अप्लाइड टू इट. अब इंडियन लर्निंग सिस्टम इस हिसाब से बना ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है इसके अराउंड. क्या प्रैक्टिकली कुछ पढ़ा, लॉ पढ़ा, कोई आपने कुछ पढ़ा लिटरली, एंड यू गो इनटू जस्ट क्रैमिंग दैट. क्रैम करके जॉब नहीं मिलती, जॉब मिल भी गई तो जॉब में तो फिर वही ना रैट रेस में लग गए हो आप, तो वो तो नहीं चाहिए आपको. इफ यू रियली वांट टू गो इनटू दिस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, यू हैव टू से बी एज ओपन माइंडेड एज यू कैन बी कन्वर्सेशनल, talk freely to people as much as you can, and this one line This whole journey I just spotted that one thing कि मतलब जो पढ़ता देख रहा है, बातें तो हो रही है आपकी, सबसे बातें करनी है, बिल्कुल open minded रहेंगे, मतलब that's one of the best thing that you have. One line if I could ever say to anyone is that even if you have nothing, zero everything, and अब बस कुछ नहीं, देखो मैं तो ये बोलूँगा, ये जो फुटपाथ सोना ये सब है, ये सब कह के भी कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं जीरो पे था, बिकॉज आई ऑलवेज न्यू कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कभी ना कभी तो घर वाले ले ही लेंगे ना, एक और नहीं भी था. आई रियली डिडंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो. ये जितना सब मैंने सीखा, ये सारे स्किल्स तो बचपन से ये सब घर वालों के साथ रह के पापा को नेगोशिएट करते देख के सब तो सीखा ही ना मैंने उनसे. और अच्छा स्कूल मिला तभी जाके इतनी अच्छी फुटिंग मिल पाई, वरना मुझे कहाँ पता था कि पीपीटी कैसे बनती है या पिच डेक क्या होता है, मुझे तो नहीं पता था, बट इसे सीखा ना. तो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस की स्टोरी, ये सारी बातें ना सिर्फ बोलने की बातें होती हैं, ठीक है. इन सब पे खुद को देख के और ये सोच के कि यार 20 की उम्र में उसने वो अचीव कर लिया, उसके पास तो ये फलाना ये वो हमारे पास नहीं है, ये सुन के डीमोटिवेट होना तो सबसे बेकार चीज हो जाएगी. तो इसीलिए द वन लाइन यू कैन एवर टेक अवे फ्रॉम मी एट लीस्ट इज दैट consistency is the thing. Even if you have nothing but you show up every day and you do that task religiously, it will take you places even hard work can't at one point. Consistency will take you. So thank you guys. That was from our side. This is our first ever Tom Stories podcast. Thank you, Shreyas.